राइट सर। ऑन कर दीजिए, तब तक मैसेज करते हैं। सभी ठीक को है जय सर। हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जल्दी से हम सभी को इनवाइट कर लें, अपनी सभी टीम को इनवाइट कर लें, क्योंकि आज अगर ये चीज समझ ली कि डुप्लीकेशन क्या होता है और कैसे होता है, ये बताने वाले हैं हमारे दोनों स्पीकर। जल्दी से आप सबको इनवाइट करें। The company that has remained steadfast and kept the right principles. The company headed toward the world with the right principles. The company that grows with its customers and shares generously. We are Atomy. Atomy, which has been growing ever since its establishment in 2009, achieved 2.2 trillion Korean won in global sales in 2021 and surpassed 16 million global members. Atomy's #1 goal of going beyond customer satisfaction to customer success continues to be its top priority to this day. Providing good quality products at reasonable prices, Atomy's competitiveness lies in the nature of distribution. The absolute quality and absolute price product philosophy that Atomy has practiced since its inception is included in all of its products, such as health functional foods, beauty, living, food, fashion, home appliances, and more. Hemohim, which has been the top seller in its industry for 7 consecutive years, has passed 1.7 trillion Korean won in cumulative sales. It has gotten international patents in 21 countries and is forging a unique new path for health functional food products. Absolute Skincare, which has become one of the best-selling cosmetics in the industry with sales of 100 billion Korean won every year since its launch, was recognized for its advanced technology with King Sejong Award from the Korean Intellectual Property Office in 2021, for the first time in the cosmetics industry. The Fame, another luxury cosmetic product reborn with upgraded ingredients and technology, is also loved by consumers as it reflects Atomy's product philosophy. Atomy is practicing customer-centered management in all of its corporate activities, and this was recognized by becoming the industry's first to acquire customer-centered management certification for 2 consecutive years. Starting with the U.S. branch in 2010, Atomy is a global company which opened 22 branches in Asia, South America, Oceania, and Europe, with 16 million members worldwide. Atomy opened branches in New Zealand, Turkey, the United Kingdom, Kazakhstan, and Kyrgyzstan, and is planning to open 20 more branches within the next 5 years. Atomy's GSGS strategy, which stands for Global Sourcing Global Sales, allows the supply of products that align with the absolute quality and absolute price philosophy through Atomy's global sales network. Atomy's success system, in which the company runs all seminars, allows any member to succeed regardless of individual ability. This is the driving force behind Atomy's distinctive growth.
the next generation of online and offline distribution broadcasters, which presents Atomy's vision to members around the world regardless of time and space. Entertainment and media, which converges business and culture. Atomy provides the vision of a global success system which transcends time and space by providing a variety of services. Atomy provides various support measures for partnering companies such as cash payment within 1 week from delivery, interest-free operating fund loans, and joint quality management systems, among others. These create a culture of accompanied growth. Sharing is a mission that all companies must fulfill. Atomy's executives, employees, partnering companies, and members all practice sharing together to improve the lives of all members of society. Whenever sharing is needed around the world, global branches will be united to support happiness for all. The company that holds true to its principles while creating a new distribution culture. The company expanding globally with the trust of people around the world. The company that dreams of customer success while moving beyond customer satisfaction. The company that cherishes the spirit. We are proud Atomy. Over to you, जगराम जी। जी सर, आज का सेशन हम सभी कंपनी मोटो से स्टार्ट करेंगे, तो आप सभी आमंत्रित हैं और आपको म्यूट का ऑप्शन दिया गया है। एक साथ सभी मोटो का इस्तेमाल करें। सरिता जगराम सर अनम्यूट कर ले। जी सर, जगराम सर अनम्यूट कर ले। सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। मैं सेल्स मास्टर जगराम गुप्ता आज एटोमी अलाइट ग्रुप के इस शानदार सेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को नववर्ष 2080 की शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, आज का सेशन बहुत शानदार, जबरदस्त और होने वाला है, इसलिए आप सेशन का शुरू से अंत तक सुनने का श्रम करें और मेरी आप सभी से गुजारिश है। और आज मैं अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए आज के स्पीकर श्री प्रवीण भारद्वाज जी को आमंत्रित करने से पहले थोड़ा सा उनके बारे में बताऊंगा। प्रवीण भारद्वाज जी राजस्थान के भिवाड़ी से बिलोंग करते हैं और वो खुद MBA हैं। उनका वो खुद सेल्स मास्टर ऑलरेडी हैं ही। MBA के साथ साथ बिजनेस के मामले में वो बहुत शानदार हैं, जो आपको अपने खुद के हिसाब से वो बताएंगे। तो आप सभी के सहयोग से मैं प्रवीण भारद्वाज जी को आमंत्रित करता हूं और तालियों के साथ प्रवीण जी वेलकम, आपका स्वागत है। आइए। वेलकम सर, वेलकम 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 प्रवीण जी, वेलकम प्रवीण जी, वेलकम। थैंक यू जगराम। वेलकम सर, वेलकम। जगराम जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा संजय मेश्राम सर का, TN साउस्कर सर का, विकास गौतम जी का, डॉक्टर साहब का और मेरे सभी साथियों का, शेरन रोज मास्टर्स का जो मेरे कॉलीग्स हैं, डायमंड मास्टर्स का और सभी मेरे साथी सेल्स मास्टर्स का, सेमी सेल्स मास्टर्स का और अन्य सभी व्यक्ति जो डायरेक्ट सेलिंग में एटोमी परिवार का हिस्सा है और हमारे साथ एटोमी के बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी जो है किसी न किसी
वक्त पे हमें नेटवर्किंग की पावर का एहसास होता है। जब हम पहली बार नेटवर्किंग को पहचानते हैं, इसकी पावर को पहचानते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं कि इसमें सफल होने के लिए, या जो नेटवर्किंग का बिजनेस है इसमें सफल होने के लिए जो सबसे ज्यादा एक चीज काम करती है वो होता है डुप्लीकेशन, और एक चीज होती है कंपाउंड, जो है कंपाउंडिंग या मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन इस बिजनेस में क्यों होता है, क्यों व्यक्ति एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जुड़ता चला जाता है और ये बिजनेस एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, उसका सीधा सा कारण है कि डुप्लीकेशन होता है इस बिजनेस में। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जब हम काम करने लगते हैं तो हमारे अंदर जो ताकत होती है, बिजनेस को बढ़ाने की क्षमता जो हमारे अंदर होती है, वो ही क्षमता हम दूसरों में ट्रांसफर करते हैं। वो कहते हैं कि संगति का असर होता है, तो संगति का अच्छा और बुरा दोनों ही तरह का असर होता है। तो सेम डुप्लीकेशन के साथ है। अगर हम अच्छी चीजें अपनी टीम में अपने कोलिग्स के साथ सीखेंगे और सिखाएंगे तो हमारा बिजनेस कई गुना गति से बढ़ेगा, और अगर हम गलतियों को डुप्लीकेट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए, सबके लिए नुकसानदायक होगा। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो उसका नुकसान सिर्फ मुझे ही नहीं होगा, बल्कि मेरे जितने भी सहकर्मी हैं उनको भी कहीं ना कहीं होगा। तो हमें सबको आज ये रियलाइजेशन करना है कि डुप्लीकेशन क्या है और क्या सही चीजें हैं जो हमें करनी है, और किन गलत चीजों से हमें बच के चलना है। साथ ही में हमने उन लोगों को जो कि इस बिजनेस में नए आ रहे हैं, हमें डुप्लीकेशन की ताकत को से उनको अवगत कराना है, ताकि वो इसको समझे और अकॉर्डिंगली अपना बिजनेस एक अच्छे स्तर पर बिल्ड कर सके और आगे बढ़ सके। तो इसके लिए मैंने ज्यादा लंबी नहीं, छोटी सी एक स्लाइड बनाई है, तो वो आप सबके साथ शेयर करूंगा, जिससे आप सब भी वो देख सके और उन की पॉइंट्स को नोट कर सके। क्योंकि ये की पॉइंट्स अगर हमने अपनी टीम में सभी को ट्रांसफर कर दिया और इनका महत्व समझा दिया, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि हम सभी का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा, और हम बेसिक्स अपनी टीम को सिखाते जाएंगे और उनको बताते जाएंगे। तो एक बार मैं स्क्रीन शेयर करने की परमिशन चाहूंगा प्रीतपाल जी से। यस सर, प्लीज आप कर सकते हैं, प्लीज करिए। यस सर, आप सभी देख पा रहे हैं ये? यस 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 जी। तो डुप्लीकेशन ये वो फार्मूला है जो हम सभी के लिए होल्ड करता है। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई टिपिकल बिजनेस नहीं है या कोई मुश्किल बिजनेस नहीं है। ये डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही आसान बिजनेस है जिसे हर कोई बिल्ड कर सकता है। हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर आने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। कोई व्यक्ति जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है वो भी इस बिजनेस को बिल्ड कर सकता है, बशर्ते वो उन चीजों को फॉलो करे, उन सिंपल स्टेप्स को फॉलो कर ले जो कि उसका अपलाइन या उसका लीडर उसको सिखा रहा है और वो जानता है। तो उसे कुछ नहीं करना है, जस्ट अपने लीडर को फॉलो करना है। तो ये वो फार्मूला है जो हर किसी के लिए होल्ड करता है, और इसके अलावा इस बिजनेस में सीखने सिखाने के लिए मैं नहीं मानता कुछ और है। तो इन सिंपल स्टेप्स को वो फॉलो करें। वो सिंपल स्टेप्स क्या है, तो मैं दो तरह से बताना चाहूंगा कि दो तरह के लोगों के लिए वो स्टेप्स है कि पहले जो हमारे साथ जो न्यू ज्वाइनीज होते हैं उनको क्या चीज फॉलो करनी है, और दूसरा जब एक बार हम लीडरशिप रोल में आ जाते हैं तो हमें किन चीजों को किन चीजों को फॉलो करना है और अपनी टीम में क्या चीजें डुप्लीकेट करानी है। तो पहली चीज, जो व्यक्ति नए आते हैं उनको क्या चीज सीखनी है और डुप्लीकेट करनी है, उनको कंपनी का प्रोफाइल शेयर करना। सबसे पहले आएगा वो अपनी लिस्ट बनाना शुरू करें। क्या हमारे साथ जितने भी न्यू ज्वाइनीज हैं वो लिस्ट बनाना शुरू करते हैं? वो लिस्ट बनाना कब शुरू करेंगे? कि जब हम एज ए लीडर हम खुद इन चीजों को फॉलो करते हैं। क्या मैं खुद अपनी लिस्ट डेली बनाता हूँ? प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट जिसे हम बोलते हैं, उन लोगों को लिस्ट उसको कहते हैं कि हम जब जिन व्यक्तियों को हमने प्लान दिखाना है, प्रोफाइल दिखाना है, जिनको हम इस बिजनेस में लाना चाहते हैं, अगर हमारे पास उनके नाम और नंबर हैं, हम उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे हैं और उनको इनवाइट कर रहे हैं अपनी बिजनेस मीटिंग में, या हम उनसे 1 to 1 जाकर उनके घर पर मिल रहे हैं और उनको प्लान दिखा रहे हैं और प्लान दिखाने के बाद फॉलो अप कर रहे हैं। ये बेसिकली 4 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके, जिनको अपनी टीम में डुप्लीकेट करा के
बड़े से बड़ा लीडर, और मैं कहूंगा कि जो शुरुआत कर रहा है वो भी अगर इन 4 स्टेप्स को फॉलो कर रहा है और डुप्लीकेट कर रहा है और अपनी टीम में करवा रहा है, तो बहुत ही कम वक्त में मैं ये कह सकता हूं कि मात्र 90 दिनों में वो एक सेल्स मास्टर का लेवल एटोमी में अचीव कर सकता है। हमें जस्ट यही ट्रैक करने की जरूरत है कि जब तक हमारी टीम में हर व्यक्ति सेल्स मास्टर नहीं बन जाता, तो क्या वो इन 4 स्टेप्स को फॉलो कर रहा है। अगर वो इन 4 स्टेप्स को सिंसियरली सीरियसली फॉलो कर रहा है और अपनी टीम में करवा रहा है, तो यकीन मानिए कि आने वाले वक्त में उसकी टीम्स में सेल्स मास्टर्स की जो बाढ़ आएगी वो उसका वो खुद भी अंदाजा नहीं लगा सकता। ये पहला स्टेप फॉलो करने के बाद हमें देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सफल होता है या मुझे मेरी टीम में कैसे लोग चाहिए, तो मैं सिंपल ये कहता हूं कि मेरी टीम में मुझे दिमाग वाले लोगों की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो कि मतलब आधा दिमाग रखते हो और सीरियसली फॉलो करते हो। आधा दिमाग क्यों? आधा दिमाग का मतलब ये नहीं कि वो पागल होने चाहिए। आधा दिमाग से मेरा मतलब है कि वो लॉजिकल सोचने वाले होने चाहिए और उससे ज्यादा इन चीजों के बारे में ना सोचें कि मुझे कैसे करना है, क्या मेरे को अपना कोई नया सिस्टम बनाना है। क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि व्हील को इन्वेंट किया जा चुका है, मतलब कि हम सब ने कंपनी ने सिस्टम क्रिएट किया हुआ है, हमें जस्ट उस सिस्टम को फॉलो करना है। कंपनी ने प्रोडक्ट बनाए हुए, कंपनी ने बिजनेस प्लान दिया हुआ है, हमें जस्ट जाकर वो बिजनेस प्लान और वो प्रोडक्ट्स लोगों को इंट्रोड्यूस करने हैं। इसी में आगे चले तो हमने जो है हमारे लीडर्स ने, सीनियर लीडर्स ने ये जो बिजनेस प्लान शो करने का जूम मीटिंग का सेशन बनाया हुआ है, ये बहुत अच्छा जरिया है। हम अपने नए लीडर्स को इसमें प्लग इन करना है। तो हर नए व्यक्ति अगर वो यहाँ पर प्लग इन है, तो ऊपर से नीचे तक आप देखेंगे कि सभी लोग एक ही सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। और जब बहुत से लोग एक ही चीज को फॉलो करते हैं तो उसकी पावर, वो कहते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन और पावर ऑफ एक्शंस, वो कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। तो उससे उस टाइम पर फर्क नहीं पड़ता है कि अगर एक व्यक्ति कुछ समय के लिए काम नहीं भी कर पा रहा है लेकिन बाकी सभी लोग उसमें प्लग इन है, तो नए व्यक्ति भी जो आते हैं वो चार्ज अप होकर उसमें काम करने लगते हैं और सीखने लगते हैं। और कुछ समय बाद जब वो लगातार उन चीजों को करते जाते हैं तो उनके अंदर वो स्किल सेट डेवलप हो जाता है जो कि इस बिजनेस में उन्हें सफलता की ओर लेके जाता है। तो जैसा कि कहा भी गया है, कीप इट सिंपल, या हम इस पॉइंट को इस तरह से भी समझ सकते हैं, बहुत से लोग इसे कहते हैं किस, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो हमें चीजों को सिंपल रखना है, उनको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है और अपना नया सिस्टम डेवलप नहीं करना है। थर्ड है बिजनेस अलाइनमेंट। थर्ड पॉइंट जो हमें सीखने का है या डुप्लीकेट कराने का है वो ये है कि क्या हमारा बिजनेस, जो हमारी बिजनेस स्ट्रेटेजी है या बिजनेस गोल्स हैं, वो हमारे अपलाइन के साथ अलाइंड है कि नहीं है। अगर हमारे जो अलाइनमेंट है, बिजनेस का अलाइनमेंट है, सोच है, या जो हमारे बिजनेस की गति है, कोऑर्डिनेशन है, वो हमारी अपलाइन के साथ नहीं है, तो माफ कीजिएगा, हम इस बिजनेस में बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। वो इसलिए जरूरी है कि सभी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जैसे कोई भी कार होती है, उसमें जब तक की जो है इंजन की पावर चारों एक्सेल्स, दोनों एक्सेल के जरिए हर टायर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, तब तक वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी या उसका अपनी पावर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगी। तो इसी तरह इस बिजनेस में जब तक हम अपलाइन, हम खुद और हमारी डाउनलाइन कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं करेंगे, बिजनेस को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक जो कि अपेक्षित सफलता होनी चाहिए वो उतनी बड़ी नहीं हो पाएगी जितना कि हम सोचते हैं या जिसके लिए हम इस बिजनेस में आए हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहूंगा कि लास्ट ईयर विकास गौतम सर की टीम ने सेल्स मास्टर्स निकालने के लिए, हमने दीपावली के आसपास प्रयास किया और उस टाइम पर हमारी टीम में मैक्सिमम सेल्स मास्टर्स निकले थे। उसका सीधा सा कारण ये है कि हम सभी ने अपने आप को अलाइन करके, अपने लीडर को अलाइन करके सभी ने एक दिशा में प्रयास किया था। तो वो सिंगल साइकिल में 14 के करीब सेल्स मास्टर्स या सेमी सेल्स मास्टर्स टोटल हमारी टीम में से निकल कर आए थे। ये उसी का प्रयास है। तो ये हमें रेगुलरली इस तरह का अलाइनमेंट करना है। हम ये अलाइनमेंट जब तक ये 15 दिन के साइकिल में अलाइनमेंट हमारा सबका सही नहीं आ जाएगा, तब तक हमें इसमें सतत प्रयास करने हैं। एक बार 15 डेज के साइकिल में ये अलाइनमेंट आ जाता है, उसके बाद हम इसे वीकली करेंगे और डेली करेंगे। तो जब हम इस ढंग से अलाइनमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इंडिया में भी ऐसे लोग निकलने लग जाएंगे कि वो पर डे 80,000 रुपीज के लेवल को, एटोमी का जो कि मैक्सिमम लेवल है, वो उसको आसानी से अचीव कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट है एट्थ वंडर। डुप्लीकेशन में ऐसी क्या ताकत है
कि जो है ये इस बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे ले जाता है? तो देखिए सीधा सा कारण है कि हम मल्टीप्लिकेशन या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को वर्ल्ड का 8th वंडर मानते हैं, या कंपाउंडिंग को 8th वंडर मानते हैं। डुप्लीकेशन के जरिए ही वो संभव है। अगर हम अपनी टीम में डुप्लीकेशन नहीं करेंगे, अपने नए लोगों को डुप्लीकेशन नहीं सिखाएंगे, तो हम कभी भी जो है नेटवर्किंग की पावर को ट्रूली अचीव नहीं कर पाएंगे, उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे जो सोचकर हम इस बिजनेस में आए हैं। तो कंपाउंडिंग का सीधा सा अक्सर आप देखते हैं कि उदाहरण दिया जाता है कि एक बार एक व्यक्ति से पूछा गया है कि अगर उसे जो है डेली 1 रुपए से मिलना शुरू हो और अगले दिन उसे उसका डबल मिलेगा, तो अगर आप 30 दिन में ये कंपाउंडिंग का फार्मूला लगाएंगे तो आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर वो व्यक्ति तीसरे दिन $1 बिलियन से ज्यादा की जो है अर्निंग ले रहा होगा। हम में से बहुत से लोग इस चीज को रियलाइज नहीं करते, और बहुत से लोग ये कहेंगे कि अगर किसी को डेली 10,000 रुपए, 20,000 रुपए या 1 लाख रुपए भी मिल रहे हैं तो वो उसको लेने के लिए हाँ कर देगा। लेकिन ये कंपाउंडिंग जो है वर्ल्ड का 8th वंडर है। आप खुद कैलकुलेट करके देखिएगा, जिससे आप इसकी पावर को रियलाइज कर सके। अगर हमने ट्रूली कंपाउंडिंग की पावर को रियलाइज कर लिया और हमारी टीम में ऐसे लोग हैं जो है जिनका फर्म बिलीफ है, जब तक देखिए बिलीफ नहीं आएगा तब तक लोग हमारे साथ काम नहीं करेंगे। और बिलीफ लाने के लिए मैं ये मानता हूं कि श्रद्धा और भक्ति दो चीज चाहिए। यही कारण है कि नेटवर्किंग में ज्यादा दिमाग वाले लोग कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि वो बिजनेस सेंस अपनी लगाने लग जाते हैं। वो बिजनेस सेंस जो नेटवर्किंग में काम नहीं करती बल्कि इसके बाहर काम करती है। लेकिन एक बार जो व्यक्ति नेटवर्किंग में आ गया है, जब तक वो अपने आप को पूरी तरह अपने अपलाइन को समर्पित नहीं करेगा, अपनी कंपनी के बिजनेस प्लान को और प्रोफाइल को समर्पित नहीं करेगा, तब तक उसे ऊपरी रूप से, मिथ्या रूप से वो सफलता नहीं मिल पाएगी जिसके लिए वो सोचना चाहता है या करना चाहता है, या जिसके लिए सपने देखता है। सिंपल बिलीफ सिस्टम और कंपाउंडिंग की पावर पे काम करते हुए डुप्लीकेशन को जितने लोग जो है अपनी टीम में फॉलो करेंगे, खुद से फॉलो कराएंगे, तो वो अचीव करेंगे। यहाँ पर मैं एक और चीज इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा कि डुप्लीकेशन तभी संभव है जब हमारे एक्शंस जो हैं और हमारे जो वर्ड्स हैं वो सेम होंगे। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं जो है खुद उन चीजों को फॉलो ना करूं। मैं खुद तो उन चीजों को फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं अपनी टीम को उन चीजों के बारे में बता रहा हूं तो हमारी टीम कभी भी उन चीजों को फॉलो नहीं करेगी जो हम कह रहे हैं। वो उन चीजों को फॉलो करती है जो हम वास्तव में फील्ड में कर रहे हैं। ये तो जो अभी तक मैंने आपको कुछ पॉइंट्स शेयर किए हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो कि नए लोगों को जो है इम्प्लीमेंट करने हैं, या हमारी टीम में जो नए लोग आ रहे हैं या नए लीडर्स जो डेवलप हो रहे हैं, हमें उनको बताना है, उनको ट्रेन करना है कि उनको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है और क्या चीजें उन्होंने करानी है अपनी टीम में या सिखानी है। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं सेल्स मास्टर्स भी हूं, मैं समझता हूं कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि साथ ही सेल्स मास्टर्स को उन चीजों को ध्यान दिला जाए कि क्या चीजें उन्होंने डुप्लीकेट करनी है और इन चीजों के अलावा क्या चीजें नहीं करनी है। तो डुप्लीकेशन का जैसा सिंपल सा मतलब है कि मैंने ये छोटे से की पॉइंट्स बनाए हैं। डुप्लीकेशन का मतलब है, जैसे डुप्लीकेशन में पहले डी आता है तो डिसिप्लिन। हमारे अंदर अपने बिजनेस को लेके डिसिप्लिन्ड अप्रोच रहनी चाहिए। जो डेली हमें टास्क करने हैं वो जो है डेली बेसिस पर करने हैं। क्या हम डेली बेसिस पर प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं? क्या हम डेली बेसिस पर डिसिप्लिन्ड वे में अपनी टीम में लोगों से बात कर रहे हैं? क्या हम अपने अपलाइन के संपर्क में डिसिप्लिन्ड वे में डेली बेसिस पर है? क्या हम कम्युनिकेट कर रहे हैं? इसी तरह डुप्लीकेशन में नेक्स्ट वर्ड है यू, यानी अंडरस्टैंड। क्या हम एज ए लीडर, हमें हमारा रोल पता है? क्या हम इमोशनली अपनी टीम के साथ, की लीडर्स के साथ कनेक्टेड है? क्या हम उनकी प्रॉब्लम्स को एज ए लीडर समझते हैं और क्या हम उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुझा सकते हैं? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में लीडर का रोल सिर्फ एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है, बल्कि उसका इससे बड़ा रोल ये है कि वो अपनी टीम में लीडर्स को ये सिखा पाए कि वो अपनी प्रॉब्लम का खुद से सॉल्यूशन निकाले। क्योंकि कोई भी व्यक्ति भगवान ने ऐसा नहीं बनाया जो दूसरे की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, लेकिन हर व्यक्ति को ये काबिलियत जरूर दी है भगवान ने कि वो अपनी खुद की प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट आता है प्लान। क्या हम अपना प्लान, हमारे पास हमारा बिजनेस प्लान है। अगर मेरे पास मेरा ही बिजनेस प्लान नहीं है तो मैं अपनी टीम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो भी उनके पास उनका प्लान होगा।
और एटोमी में बहुत अच्छा सिस्टम है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 15 डेज साइकिल है। तो क्या मेरे पास मेरे अपने अगले 15 दिन की एक्टिविटीज प्लान्ड है? क्या उन एक्टिविटी कैलेंडर में मेरे टीम के की लीडर्स और न्यू ज्वाइनीज को लेकर कुछ एक्टिविटी प्लान की हुई है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम देखें कि ये जो हमारा AIA प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हम डेली जो है जूम सेशन रख रहे हैं। ये सभी एक्टिविटीज इसीलिए है ताकि हम इन चीजों को डुप्लीकेट कर पाए, यहाँ पर आकर सीख पाए एज ए लीडर, और अपने लोगों को कनेक्ट कर पाए और फिर उनके लेवल पर ये चीजें डुप्लीकेट कर पाए। तो क्या हम ये चीजें कर रहे हैं? नेक्स्ट आ जाता है लर्न। क्या हम डेली बेसिस पर हर बार सीखने को तैयार हैं? देखिए, ना सिर्फ हम अपने लीडर से सीखते हैं, लेकिन हम अपने कस्टमर से भी बहुत कुछ सीखते हैं, हम अपने टीम मेंबर से भी सीखते हैं। हर व्यक्ति जो नया इस बिजनेस में आ रहा है वो अलग एक माइंडसेट के साथ आ रहा है। तो जब हम उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम कुछ चीजें उससे सीख सकते हैं और उसको इस बिजनेस के बारे में सिखा सकते हैं। हमें उनसे क्या सीखना है कि उस तरह का व्यक्ति जो वो अलग सोच लेके आ रहा है, उसको हम अलाइन कैसे करें। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है आई। तो क्या हम आइडेंटिफाई करते हैं कि देखिए, जब भी हम नेटवर्किंग के लिए एक हमें काम करना होता है एक लार्ज स्केल पे, हम एक छोटे से बिजनेस को स्टार्ट करके हमें इसे मल्टीप्लाई करना होता है। और जब भी हम किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो ना सिर्फ अच्छी चीजें मल्टीप्लाई होती हैं, बल्कि प्रॉब्लम्स भी मल्टीप्लाई होती हैं। शुरुआत में जिन प्रॉब्लम्स को हम छोटा समझते हैं, टीम बढ़ने के साथ साथ वो प्रॉब्लम बड़ी हो जाती हैं। तो क्या हम समय से पहले ये देख पाते हैं कि हमारी टीम में आने वाले वक्त में क्या क्या प्रॉब्लम्स होने वाली हैं और उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या एक्शंस ले रहे हैं? तो अच्छा लीडर वही है जो आने वाले वक्त से ही पहले उन प्रॉब्लम्स को समझता हो, विजुअलाइज कर सके और उनके लिए सॉल्यूशन निकाल सके। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है एक्साइटमेंट क्रिएट करने का। क्या हम छोटी से छोटी चीजों को लेकर और बड़ी से बड़ी चीजों को लेकर एक्साइटमेंट क्रिएट कर पाते हैं अपनी टीम में? क्या, जैसा कि फॉर एन एग्जांपल मैं कहूंगा कि अभी हम सभी जानते हैं कि साउथ कोरिया के लिए ट्रिप अप्रैल में जानी थी, लेकिन कंपनी ने वो पोस्टपोन कर दिया है। तो हम इसे कैसे देखते हैं? क्या हम इसे एज ए रोड ब्लॉक देखते हैं या एज एन अपॉर्चुनिटी? मैं इसे एज एन अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूं। मैंने अपने लीडर्स के साथ ये डिस्कस किया है कि जो लोग इस अपॉर्चुनिटी से अप्रैल में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, क्या वो कोशिश कर सकते हैं कि ना वो सिर्फ खुद बल्कि अपनी टीम से 4-4 लोगों को सितंबर में क्वालिफाई करवा पाए, और क्या वो दीपावली पे एटोमी की तरफ से साउथ कोरिया जाने के लिए प्रयास करेंगे? तो मुझे लगता है कि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलने जो है थोड़ी ही टाइम में अप्रैल ऑनवर्ड्स शुरू हो जाएंगे। तो इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट डुप्लीकेशन में आता है ए, आस्क। क्या हम अपने लीडर से पूछते हैं या खुद से भी हम पूछते हैं कि आज हमने क्या किया? देखिए, हमें खुद से भी पूछना चाहिए, तो हमें सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि हमने आज अपना टाइम कितना वेस्ट किया है और कितना यूटिलाइज किया है। अगर हम अपने लीडर से यही सवाल पूछते हैं कि सर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आज आपने अपना समय या डे कैसे स्पेंड किया, तो हम ये जान सकते हैं कि हमारे लीडर्स क्या कर रहे हैं और उनकी किन एक्टिविटीज को हमने डुप्लीकेट करना है, फॉलो करना है। इसके अलावा क्या हम अपनी टीम को डेली ट्रेन करते हैं? एक और चीज जो नेक्स्ट आता है डुप्लीकेशन में आई, क्या हम अपनी टीम में सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच इग्निट कर रहे हैं? देखिए, जब भी बहुत से लोग एक ही दिशा में प्रयास करते हैं तो हर व्यक्ति का माइंडसेट अलग होता है। तो इग्नाइट सॉल्यूशन में यह है कि हर व्यक्ति को क्या हम ये सिखा रहे हैं, ऊपर के लेवल से लेकर बिल्कुल जो ग्रास रूट लेवल पे या जो न्यूली रिक्रूटेड है या न्यू ज्वाइंट है, क्या वो ये व्यक्ति सीख रहा है कि उसको जो प्रॉब्लम आ रही है उसको वो सोल्व खुद ही करनी है? हम सिर्फ उसे रास्ता सुझा सकते हैं। से कोई व्यक्ति है वो कह रहा है कि सर मुझे प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, तो क्या हमने उसको ये कहा है कि आप एक बार जो है ऐप पर जाकर लॉगिन कीजिए और वहां पर खुद से करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम उसको गाइड करें? बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे जब हिमोहिम इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था तो वो बाहर से मंगा रहे थे, तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि जब तक हिमोहिम नहीं आएगा तब तक हम काम नहीं करेंगे। लेकिन बहुत से लोगों ने हिमोहिम के उसी नॉलेज को स्प्रेड करना, शेयर करना शुरू किया, और जब हिमोहिम आया तो उनका बिजनेस कई गुना मल्टीप्लाई हुआ। बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जब तक नहीं आएंगे तब तक वो काम नहीं कर पाएंगे। तो क्या लोगों ने इसे एज एन अपॉर्चुनिटी की तरह लिया कि वो अपने टीम में इस चीज को, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के एक्साइटमेंट को बिल्ड कर पाए?
तो ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें अपनी टीम को सिखानी है कि किसी भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं मानना है, बल्कि उसे एज एन अपॉर्चुनिटी लेकर उनको सॉल्यूशन खुद से निकालना है। एक बार जब हम ये सारी चीजें फॉलो करते हैं तो देखेंगे कि हमारी टीम में ये डुप्लीकेशन होने लग जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या हम अपने टीम मेंबर से अपलाइन एज वेल एज डाउनलाइन, क्या हम फीडबैक के लिए हमेशा ओपन रहते हैं, और क्या हम अपना क्रिटिसिज्म भी जो है ओपन हार्ट से सुनते हैं कि नहीं। अगर हम ये सब चीजें सुनते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम समय समय पर अपना कोर्स करेक्शन अपने बिजनेस को लेकर करते रहेंगे, अपनी पॉलिसी को जो है अपने लीडर्स के साथ और अपनी टीम की फिलॉसफी के साथ अलाइन करते रहेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या हम नेगेटिविटी को दूर रखते हैं। बहुत सी चीजें होती हैं जो इस बिजनेस में नेगेटिविटी को फैलाती हैं, क्या हम अपने आप को उन नेगेटिव विचारों से दूर रख पाते हैं, और क्या हम अपनी टीम को ये चीज डुप्लीकेट करा सकते हैं कि नहीं, और कराते हैं कि नहीं। मेरा ये मानना है कि सभी लीडर्स और सभी न्यू ज्वाइनीज, वो चाहे किसी भी लेवल पर हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर इन चीजों का ध्यान रखते हुए अपने अंदर इन चीजों को फॉलो करेंगे और अपनी टीम में डुप्लीकेट कराएंगे तो उनका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी गति से बढ़ेगा। और जो वो सोचकर एक फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर इस बिजनेस में आए हैं, वो मात्र डुप्लीकेशन से ही संभव है। तो जो व्यक्ति डुप्लीकेशन को ठीक ढंग से फॉलो करेंगे वो इस बिजनेस में बहुत तेजी से तरक्की करेंगे, और जो नहीं कर पा रहे हैं या जिनको दिक्कत आ रही है, उनको ये समझना होगा कि मात्र डुप्लीकेशन में ही प्रॉब्लम है। अगर वो इस चीज को सुधार लेंगे तो सफलता उनसे बिल्कुल भी दूर नहीं रहेगी। थैंक यू वेरी मच। नाउ ओवर टू जगराम जी। थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू, बहुत जबरदस्त सेशन। और अब आज आपने डुप्लीकेशन की ताकत के बारे में हम सभी को बताया है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मौका मिला, और इस तरीके से हम आगे भी सीखते रहेंगे। और अब मैं हमारे और एक नए सेल्स मास्टर श्री गफूर खान को आमंत्रित करने से पहले उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। वो राजस्थान के अलवर से बिलोंग करते हैं, और वो राजस्थान सरकार में एक कृषि विभाग के अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं फिलहाल। और मैं सेल्स मास्टर गफूर खान का स्वागत करता हूं और उनको आमंत्रित करता हूं। हम सब मिलकर के उन्हें जोरदार क्लैपिंग के साथ आमंत्रित करते हैं। आइए गफूर जी। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम गफूर जी, वेलकम। थैंक यू वेलकम सर, वेलकम। ग्रुप के सभी हमारे पार्टिसिपेंट्स को सेल्स मास्टर गफूर खान का नमस्कार, जय हिंद, आदाब। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इस प्लेटफॉर्म के जो भी कर्णधार हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि इसकी हमें खास जरूरत थी और मेरा एक ड्रीम भी था। क्योंकि जैसे अभी जगराम जी ने बताया कि मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ, वहां पर मैं बहुत लोगों को एड्रेस किया है, बहुत लोगों को करता था, अब भी कर रहा हूँ। लेकिन एक दिल में टीस थी कि कहीं कभी ऐसा मौका मिले, एक इंडिया लेवल का प्लेटफॉर्म पे फोरम हो जिस पर मुझे कभी बोलने का मौका मिले। तो वो मुझे अवसर दिया हमारी इस लीड ग्रुप ने। और सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स जो आज इस मीटिंग में हैं, मैं आपसे इतना गुजारिश जरूर करना चाहूंगा कि आप मीटिंग के अंत तक रुकें, आपको बहुत कुछ अलग हटके मिलने वाला है। ये मैं जो आज आपको देने वाला हूं, ये मेरा एक अनुभव है। उससे पहले मेरे जितने भी इस सिस्टम में आने के लिए, इस एटमी में आने के लिए, मैं कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि जिस दिन मैंने एटमी लिया था कि मैं अचीवर बनूंगा, उसका रीजन क्या है कि जैसे ही मैंने देखा, इसका प्लान देखा, तो इसमें मैक्सिमम 24 लाख होती हैं, तो उसमें मैक्सिमम जो पे आउट मिलता है 24,786, लास्ट के 3 डिजिट 786। और देखिए, ये एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं कि जब मैंने अपनी पहली बिलिंग की तो मेरे उस बिलिंग में लास्ट डिजिट 786, इसको हम बड़ा लकी मानते हैं। ये एक कोइंसिडेंस था। और जब मैंने पहली बार जब होस्टिंग की, तो वो एक अवसर था दीपावली का, जो मैंने अरुण मीना अटोर में जो ग्रुप था उस पर की। उसके बाद आज देखिए
सबसे पहले आपको जो हमारा भारतीय नववर्ष है उसकी मुबारकबाद देना चाहूंगा, और साथ ही माह रमजान का शुरुआत है, और पहली बार मुझे होस्टिंग प्लान प्रेजेंटेशन का जो मौका मिला है, अपनी एक प्रेजेंटेशन देने का इस इलाइट ग्रुप पे, वो भी फर्स्ट टाइम इतने शुभ अवसर पर मुझे मिला है, तो ये मैं सौभाग्यशाली हूँ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, उससे जो हमारा टॉपिक है डुप्लीकेशन का, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। तो मैं अभी कुछ स्लाइड शेयर करूंगा, उसमें आप जानेंगे कि देखिए हम एटोमियन हैं, हम एटोमियन हैं, चाहे हम कहीं भी रहते हों। प्रवीण भारद्वाज जी मेरे अपलाइन है। मैंने जो हम इसकी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे थे, कभी प्रवीण जी से संपर्क नहीं किया कि आप क्या किस तरह से प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, मैं किस तरह से प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा हूं। मैं उसका एक नजारा दिखाऊंगा आपको कि हम जो एटोमियन हैं उनके दिल में, मतलब उनका दिल एक ही तरह से धड़कता है। तो प्रिंसिपाल सर, मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करने का आपसे आग्रह करना चाहूंगा। बिल्कुल सर, यू आर एलिजिबल, प्लीज कीजिए। देखिए दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, जो कहते हैं ना कि एक ही तरह का दिल धड़कता है, ये आप स्लाइड अभी प्रवीण जी आपको दिखा चुके हैं, मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। नेक्स्ट चीज है कि देखिए, ये जो महत्वपूर्ण चीज है, ये जो अभी थ्योरेटिकल चीजें हैं वो हम पढ़ लेते हैं कि डुप्लीकेशन में क्या क्या होना चाहिए, लेकिन मेन चीज आती है कि हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो कैसे करें। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है कि कोई भी व्यक्ति आपको डुप्लीकेट क्यों करे। मैं एज ए सेल्स मास्टर चाहता हूं कि मेरी टीम में सैकड़ों सेल्स मास्टर बने, मुझे डुप्लीकेट करें, पर मुझे डुप्लीकेट क्यों करें? मेरे अंदर ऐसा क्या है जो डुप्लीकेट करें? तो मैं सबसे पहले जो पहली लाइन आपको बताना चाहता हूं कि भाई आपको कोई भी डुप्लीकेट कब क्यों करेगा। सबसे पहली चीज है खुशी का एहसास हो। यानी कोई भी आदमी, देखिए आज के जमाने में सब तनाव है, सबको कुछ ना कुछ परेशानी है, और सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक जो परेशानी तो ज्यादातर लोगों में है। अगर वो आपके पास आता है, आपके पास जुड़ने में, आपको फॉलो करने में महसूस करता है, खुशी महसूस करता है, तो डेफिनेटली वो आपके नजदीक आना शुरू होगा। दूसरी चीज क्या है कि जुड़ने में अपनत्व तो महसूस करे। यदि आपका जो हाल चाल है, एक रवैया है, आपका बोलने की जो भाषा है, उसको इतना मिठास लगे, इतना उसमें लगे कि वो आदमी को आपका अपनत्व तो महसूस करे, उसको ऐसा लगे कि नहीं ये आदमी अपना है, तभी आपसे वो जुड़ने का मानस बनाएगा। और क्योंकि हर आदमी सफल होना चाहता है, हर आदमी चाहता है कि मैं सफल हूं, सफलता की बुलंदियों पर चढ़ूं, तो उसका एक ही है कि भाई जिस जगह भी जाना चाहता, आज हम भी हैं। देखिए, हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पहले किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में रहे होंगे, या उनका कोई ट्रेडिशनल बिजनेस रहा होगा, या कुछ ना कुछ, हम सब कुछ ना कुछ काम करते हैं, लेकिन एक मन में एक टीस होती है कि हम जो चाहते हैं एक्चुअली में क्या वो हमें मिल रहा है। अगर वो नहीं मिल रहा है तो हम ऐसी जगह तलाशते हैं जहां पर वो चीज हमें हासिल करने का एक अवसर मिले। तो सब चाहते हैं कि अगर आप ऐसा उनको एहसास करा पाएंगे कि आपके साथ जुड़ने में कोई अपनी सफलता महसूस करे, तो डेफिनेटली वो आपके साथ जुड़ेगा और वो आपको डुप्लीकेट भी करेगा। उसको लगेगा कि आने वाला भविष्य, देखिए शॉर्ट टाइम का, हर आदमी जो बुद्धिजीवी होगा वो 2 या 4 दिन के लिए, वो साल 6 महीने के लिए कभी भी किसी सिस्टम से जुड़ना नहीं चाहेगा। अगर वो उसको लगेगा, आप उसको एहसास ये करा देंगे कि आपका भविष्य यहाँ पर बहुत सुरक्षित है, बहुत उज्जवल होने वाला है, वो इंसान तभी आपको फॉलो करेगा, डुप्लीकेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। देखिए, नेक्स्ट जो चीज मैं आपको लग रहा हूं कि उसको लगे कि मेरा सरदार लीडर सिरदार भी है। देखिए दोस्तों, ये जो चीज मैंने आपको लिखा है कि मेरा सरदार लीडर सिरदार भी है, यानी कभी वक्त पड़ा,
कभी जरूरत पड़ी तो मेरा सरदार, मेरा लीडर, किसी भी आपको फॉलोवर, आपका जो टीम का सदस्य, उसको ऐसा लगेगा कि मेरा जो लीडर है, जिसको मैं फॉलो करने वाला हूं, जिसको मैं अपना लीडर मान रहा हूं, वो सरदार भी है, कभी वक्त पड़ेगी तो मेरे लिए वो हर तरह से तैयार है। सरदार का मतलब ये हुआ, मेरा कहने का मतलब वो सिर देने के लिए भी तैयार है, मतलब हर परिस्थिति में, हर हाल में वो आपके साथ खड़ा हुआ है। अगर उसको आप ये एहसास करा पाएंगे तो डेफिनेटली वो आपको फॉलो करेगा, वो आपको डुप्लीकेट करेगा। उसको लगे कि ये वही सही जगह है जहां पर मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हम सभी सपना देखते हैं और हम सब ने सपना देखा है। एटमी ज्वाइन करने से पहले सपना देखा था कि हमें इंपीरियल मास्टर बनना है। 6 करोड़ रुपए हमारी आंखों में हमेशा रहते हैं, जो हमें चैन से सोने भी नहीं देते। हमारा सबका सपना वही है। और देखिए, कहते हैं ना कि पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में कहते हैं ना, ईसा पीर न मूसा पीर सबसे बड़ा पीसा पीर। तो ये आज की दुनिया के हालात हैं। और जब हम उस हालात को, उस परिस्थितियों को किसी के साथ साझा करते हैं और उसको बिल्कुल पूरी तरह से हम एहसास करा देते हैं कि हाँ, यहाँ मेरे लिए जो राइट जगह है, सही जगह है, यहाँ से मैं अपना सब कुछ पा सकता हूं, तो दोस्तों ये भी मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं, वो आपको अपना सब कुछ मानने के लिए भी तैयार हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपने कहा ना कि सभी के दिल में, एटोमियंस के जो दिल है वो सभी एक तरह से धड़कता है। देखिए, वही पॉइंट्स मैंने भी नोट किए थे जो अभी प्रवीण जी बता चुके हैं, तो इस पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं इस मीटिंग का आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा। ये वो मीटिंग है, मैंने कुछ ही टाइम पहले की थी। मैंने इस पे टॉपिक लिखा है माई आई ओपनिंग इवेंट। माई आई ओपनिंग इवेंट मैंने कुछ समय पहले अपने दोस्तों के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने एसोसिएट्स के साथ एक मीटिंग की थी। वो मीटिंग में मात्र 9 लोग थे। 9 लोग थे, इससे ज्यादा लोग उसमें नहीं थे। और 9 लोगों में अपनी टीम के वो लोग बुलाए थे मैंने, जो लोग, जिनको मैं मानता था कि वो एक लीडर हैं, बहुत एक्टिव लोग हैं, और डेफिनेटली वो लीडर भी हैं। जब उन लोगों को बुलाया था और हमने उस मीटिंग को रखा, उसमें वो चीज निकल के आई जब से मैंने एटमी ज्वाइन किए है, और आज तक उस मीटिंग की डेट तक मुझे जो चीजें मिली, उसके बाद उस दिन जो मुझे चीजें मिली, मैं अकेला ही नहीं, 9 के 9 सदस्य थे, उनमें उनकी आंखें खुली की खुली रहेगी कि हम हैं कहां और हम सोच क्या रहे हैं। दोस्तों, हम अक्सर लोगों को बात कहते रहते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, लेकिन हम खुद नहीं करते। कारण, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कंपनी की प्रोफाइल बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक एक लाइन, एक एक शब्द को आपको बहुत अच्छे से समझा देते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट्स की नॉलेज बहुत अच्छी रखते हैं। वो नॉलेज हम सब भी, उनमें से मैं भी हूं, हम सब उनके बताई हुई वीडियोस देखते हैं, अपने न्यू प्रोस्पेक्ट्स को उनके द्वारा उनको समझाते हैं, उनकी जो अपना भी ज्ञानवर्धन करते हैं, और अपने जो प्रोस्पेक्ट्स हैं या कोई भी हमसे संबंधित उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना चाहता है, तो हम वो वीडियो शेयर कर देते हैं या उनसे बात भी कराते हैं, और वो बहुत अच्छे से उनको सेटिस्फाई भी करते हैं, और हमें उससे बहुत फायदा भी होता है। नेक्स्ट चीज है कंपनी का कंपनसेशन प्लान। वो भी बहुत अच्छा वो प्रेजेंट करते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। अब दोस्तों बताइए, हमारी एटमी कंपनी की 3 ही तो चीज महत्वपूर्ण चीजें। कंपनी की प्रोफाइल बहुत अच्छी है, किसी को भी आप समझाएंगे
वो उसको एक जबरदस्त लगेगी। कंपनी के प्रोडक्ट्स हमने यूज किए हैं आज तक। शुरुआत में जब हमने कंपनी ज्वाइन की थी तो बोला 93% रीपरचेज ऑर्डर होता है। हमने भी कहा था बकवास, सब अपनी बढ़ाई करते हैं, ये मेरी स्टार्टिंग की टाइम है। लेकिन आज मैं पूरे विश्वास और यकीन के साथ कहता हूं कि 93% का जो आंकड़ा है वो कम नहीं है, और अब लोगों में वो बढ़ भी रहा है कि डेफिनेटली लोग रीऑर्डरिंग करते हैं। पर क्या हम लोगों के पास अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं या खाली ज्वाइनिंग करा के छोड़ देते हैं? ये जो कुछ क्वेश्चन है, हम थोड़ा सा इस पर आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम लोगों को बहुत कुछ बता देते हैं, बहुत कुछ जानकारी हम देते हैं और थ्योरेटिकल देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल पे अगर जब आते हैं तो हम कहते हैं ना कि लोगों को बहुत कुछ बताते हैं, बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन दोस्तों लोग वो नहीं करते जो आप बताते हैं। लोग वो करते हैं जो आप करते हैं, इसी को डुप्लीकेशन। अगर आप करते हैं, आप कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, कंपनी का कंपनसेशन प्लान की बहुत अच्छी नॉलेज है आपके पास, कंपनी के प्रोफाइल की बहुत अच्छी नॉलेज है आपके पास, बावजूद उसके आप कर क्या रहे हैं? अक्सर लोगों को देखा है कुछ लेवल पाने के बाद वो शिथिल हो जाते हैं, धीरे धीरे शिथिल हो जाते हैं, मीटिंग करना छोड़ देते हैं। बावजूद उसके क्या है कि आपकी जो जिनको आप डुप्लीकेट कराना चाहते हैं, जो आपको फॉलो कराने की आप सोचते हैं, वो भी वही ढर्रे पर चलते हैं। रिजल्ट क्या आता है कि जो कुछ समय पहले थे या 1 वर्ष पहले था, जिनकी जो पोजीशन थी, 1 वर्ष बाद भी पोजीशन वो की वही रहती है। तो इससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं कंपनी का जो भी कंपनी का प्रोफाइल है, प्रोडक्ट है या कंपनसेशन प्लान है, इसी प्लान से लोग 1 वर्ष में 3-3 जंप भी लिए हैं, 3-3 लेवल भी लिए हैं। इसी प्लान, इसी कंपनी के सब सिस्टम की वजह से लोग इंपीरियल मास्टर भी बने हैं। लेकिन अगर कहीं हमारी ग्रोथ रुकी हुई है, कहीं हम स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमी है। दोस्तों, इस मीटिंग का हवाला मैं इस तरह से देना चाहूंगा कि इस मीटिंग में एक सदस्य था प्रवीण कुमार त्रिपाठी, जो MSME में जनरल सेक्रेटरी रहे हुए हैं, 25 वर्ष का बिजनेस एक्सपीरियंस उनको है। दूसरे हैं भक्तवत्सल शर्मा जी, जो एक कंपनी में बिजनेस हेड है, आज भी बिजनेस हेड है इंडिया के। और डॉक्टर जगराम गुप्ता जी, जो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, जो मैनेज करते हैं उसको। महेंद्र शर्मा जी, इस तरह से सभी का नाम लेना पाना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन 9 लोग जो थे, उनकी शुरुआत कहां से हुई कि आप अपनी टीम में 5-5 वो लोग चुने जो एक्टिव हों। तो देखिए दोस्तों क्या हुआ, वो 5-5, 6-6 लोग की लिस्ट बनाने में सोचना पड़ा, क्योंकि वो मेरी टीम के सदस्य थे सभी। और मैं सेल्स मास्टर गफूर खान, जब मुझसे उन्होंने बैक सवाल किया कि सर आप बताइए आपकी टीम में कितने सदस्य हैं, मैंने कहा 800 प्लस। सर आप 10% की लिस्ट दे सकते हैं? पसीने आ गए। 10%, चलो सर कोई बात नहीं, 2% की लिस्ट बनाने में भी पसीने आ गए। एक्टिव, वैसे तो 800 लोग हैं, लेकिन जो एक्टिव सदस्य हैं, जिनको मैं मान सकता हूं कि ये बिल्कुल एक्टिव हैं और ये नेक्स्ट सेल्स मास्टर बनने के लिए तैयार हैं, उनकी आप लिस्ट दीजिए। दोस्तों, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं आप लोग किसी के बारे में भी नहीं बता रहा, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरी जैसी हालत होगी, शायद हम में से बहुत लोगों की भी यही परिस्थिति होगी। उसका कारण क्या है कि हम सिर्फ ज्वाइनिंग करा के न तो फॉलो अप करते हैं,
मैं अपनी बता रहा हूं कि प्रॉपरली फॉलो अप किया ही नहीं। दोबारा बहुत से लोगों के पास लोगों से संपर्क किया ही नहीं। अब मुझे बताइए, जिसको ज्वाइन करा के लावारिस अवस्था में हमने छोड़ दिया, क्या हम उम्मीद करते हैं कि वो आदमी हमको डुप्लीकेट करेगा? मेरे हिसाब से तो कभी नहीं कर सकता, जिंदगी में कभी नहीं कर सकता वो आपको डुप्लीकेट। दोस्तों, एक ये मेरा उसका आई ओपनिंग इवेंट, मैंने इसीलिए इसका स्लाइड का नाम रखा आई ओपनिंग इवेंट, क्योंकि इससे मेरी आंखें खुली और उस दिन से मुझे चैन से नींद भी नहीं आ रही। और मैं दोबारा से, कहते हैं ना कि जो चीजें भूल गई रह गई, उनको दोबारा से अब हम पूरे जोश के साथ, क्योंकि आई ओपनिंग है, मैंने अपने दृष्टि पटल के सामने रखता हूं कि ये वो इवेंट था जो हमें करना चाहिए, हम सभी को करना चाहिए, रूबरू होना चाहिए, ऑफलाइन मीटिंग करनी चाहिए, ताकि उससे आमने सामने नजर से नजर मिलेंगी तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ बजाय मीटिंग के अलावा अलग भी मिल सकता है। क्योंकि जूम मीटिंग आवश्यक है, अगर जूम मीटिंग नहीं होती तो हम और आप इस प्लेटफॉर्म पर नहीं होते। लेकिन छोटी छोटी मीटिंगें भी हम लोगों को करना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के इमोशंस को समझ सकें, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझ सकें, एक दूसरे से जुड़ाव महसूस होगा। इसलिए हमें ऑफलाइन मीटिंग भी करना बहुत जरूरी है, जिससे हम एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़ सकें। देखिए, लास्ट बट नॉट लीस्ट 4 मुख्य बातें हैं जो मैं अब आप सभी से शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, लीडर, ये जो लीडर की बात है, लीडर में मैंने ब्रैकेट में लिखा है सरदार। जो वास्तव में लीडर है, हम अगर अपने आप को, लीडरशिप क्वालिटी हमारे अंदर है ही नहीं और अपने आप को मानते हैं लीडर हैं, तो आप खुद अपने आप को जानते हैं। लीडर वही होता है जिसको लोग जानते हैं। लीडर वही होता है जिसको दूर दूर से लोग, जिसका नाम सुनकर मानते हैं, हाँ यस वो लीडर है। आज हमारे लीडर्स हैं, संजय मेश्राम जी से मैं कभी नहीं मिला, सोस्कर साहब से कभी नहीं मिला, लेकिन आज भी हम उनको लीडर मानते हैं, क्योंकि उन्हीं के बदौलत आज हम इस प्लेटफॉर्म पर हैं और हम अब मानते हैं कि हमारे ड्रीम पूरे यहां से हो सकते हैं। क्योंकि एक लीडर को, मैंने पहले ही कहा कि लीडर को सिरदार भी होना चाहिए। सिरदार का मतलब है कि कभी अपने फॉलोवर्स को, अपने टीम मेंबर्स को सिर भी देना पड़े। सीधा सीधा मतलब है कि सरदार को सिरदार भी होना चाहिए। तो उसका मतलब यही है कि आप हर हाल में, हर परिस्थिति में अपनी टीम के लिए खड़े रहें। मेरा सिर्फ इसका बताने का इतना सा मतलब। दूसरा, वर्ड्स, शब्द, अल्फाज। दोस्तों, अल्फाज में बड़ी ताकत होती है। कहते हैं ना, अल्फाज आपके ऐसे होने चाहिए जो आपको, कहते हैं ना, अल्फाज में वो ताकत होती है, अर्श से फर्श पर, फर्श से अर्श तक पहुंचाने का मादा वो वर्ड्स रखते हैं। तो ये वर्ड्स हैं, इनको आप बहुत ही सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें। दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर किसी को गोली लग जाए, गोली भी एक नहीं, हमारे जो जवान है बॉर्डर पर होते हैं, अक्सर उनको कई बार इतनी बुरी तरह से घायल होते हैं, उनको 5-5, 7-7 गोलियां भी लग जाती हैं, और कई बार तो बम ब्लास्ट होता है, पूरी तरह से उनको नुकसान हो जाता है, कुछ अंग भंग भी हो जाते हैं। बावजूद उसके वो जीवित रह सकते हैं। अगर तलवार, कहते हैं ना कि किसी पर तलवार से हमला किया गया हो, उसको जगह जगह से जख्मी कर दिया गया हो, बावजूद उसके वो बच सकता है, वो घाव जख्म उसके भर जाते हैं। लेकिन अगर आपने गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लिया, नेटवर्किंग में विशेषकर जो हम आज नेटवर्किंग की बात करते हैं, अगर आपने अपने वर्डों पर, कहते हैं जबान पर लगाम नहीं रखी, गलत अल्फाज यूज किए किसी के लिए भी, चाहे वो आपका डाउनलाइन हो, अपलाइन हो, क्रॉस लाइन हो, कोई भी हो, कोई भी शख्स हो, आपने गलत वर्डों का यूज कर लिया,
तो वो आदमी आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए जा सकता है। और कहते हैं दोस्तों, हर चीज का घाव भर सकता है लेकिन शब्दों का घाव नहीं भर सकता। इसलिए शब्दों को बड़े सोच समझ के इस्तेमाल करें। दूसरा, पेशेंस। दूसरा, ये भी बहुत एक बात है कि जो पेशेंस है वो यहां पर रखना बहुत जरूरी है। कम से कम नेट आपकी जनरल लाइफ में हो सकता है इसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं हो, लेकिन आपकी नेटवर्क मार्केटिंग में जिस प्रोफेशन में आज की तारीख में हम हैं, इसमें इसका बहुत महत्व है। अगर आपने सब्र नहीं किया तो दोस्तों, क्योंकि ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, बहुत खतरनाक परिस्थितियां आती हैं, लोग कुछ भी कह देते हैं। लोग कहते हैं ना कि आपको आपने हमारे डॉक्टर हेंगिल पार्क सर का वीडियो सुना होगा, तो लोग चोर उचक्का भी कह देते, कुछ भी कह देते, बावजूद उसके वो खड़े रहे। आज बड़ा सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं। तो ये परिस्थितियां हमारे सामने भी आएंगी। कोई कुछ भी बोलेगा, बाहर का बोलने से पहले घर का ही बोलेगा। और घरों पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है कि मैंने ही तो इनको पाल पोस के, जबकि अपनी औलाद कहती है कि पाल पोस के बड़ा मैंने किया, आज यही मेरे लिए वकील बने, यही मेरे अंदर कमी करें, यही कहते हैं कि ये नहीं करना है। और आपके अंदर आग लगी हुई है कि मुझे एटमी करनी है और वो मना कर रहे होंगे। अब बताइए, अगर आप सब्र नहीं करेंगे तो घर बिगड़ेगा, सब्र कर लेंगे आप सक्सेस हो जाएंगे। तो यहां पर इस प्रोफेशन में सब्र का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज और बताता हूं, सभी सच नहीं बोलने चाहिए। देखिए ये दोस्तों, ये लाइन थोड़ा सा बिल्कुल अलग हटकर है और बहुत ही अटपटी भी लगेगी, क्योंकि सभी सच नहीं बोलने चाहिए। वैसे कहने को कहते हैं ना कि सबको हमेशा सच बोलना चाहिए, तो यहां मैं कह रहा हूं कि सभी सच नहीं बोलने चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारा जो नेटवर्किंग मार्केटिंग का है, इसमें बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, कभी अप एंड डाउन चलते हैं, और ये इसका अहम हिस्सा है। अगर हम देखिए, मैं आपको अपना ही एग्जांपल देता हूं कि मैं शुरुआत जब मैंने की बड़े जोश के साथ की, लेकिन बीच में कहते हैं ना कि बहुत डाउनफॉल भी आता है। अगर उस वक्त आप कहते हैं ना कि मैं तो सत्यवादी हरिश्चंद्र, मुझे सच बोलनी है, आप कहते हैं और जी भाई साहब आपका एटमी कैसा चल रहा है, अरे यार बस कुछ नहीं है, ऐसे ही चल रहा है, बस लग रहा है टाइम पास हो रहा है, धक्का लग रहा है। और जब आप ऐसे बोलेंगे तो लग रहा है, क्या ये इस तरह की स्थिति एटमी की वजह से हुई? क्या एटमी का प्रोडक्ट्स अच्छा नहीं था, कंपनसेशन प्लान अच्छा नहीं है, प्रोफाइल अच्छी नहीं है, ये क्यों हुआ? ये तो आपकी अपने दिमाग की उपज है। अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं संभालेंगे और आप इस तरह से बोलेंगे, जबकि सच है, मैं इसलिए सच कह रहा हूं क्योंकि आप कर नहीं रहे, आप मेहनत कर नहीं रहे, एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे, आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा है, लेकिन आप में जोश है, जुनून है, आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, आप कह रहे हैं बस जबरदस्त चल रहा है, बस जबरदस्त चल रहा है, बहुत शानदार चल रहा है। अगर आपका नहीं चल रहा है फिर भी आप ऐसे बोलते हैं, तो कहते हैं ना कि हर इंसान के जिह्वा पर एक बार सरस्वती विराजमान होती है और वह कहता है शानदार जबरदस्त, शानदार जबरदस्त, और भगवान कहता है तथास्तु। तो वो बात आपकी यहां पर कहते हैं ना, भगवान के पास कितनी है, 3000 के करीब भाषाएं बोली जाती हैं। तो अगर वही भगवान को उसको कन्वर्ट करने वाला चाहिए तो पता नहीं कितना स्टाफ लगाना पड़े। उनके पास यही है कि वो अपने बंदों के लिए कभी बुरा नहीं चाहता, और जैसा आप बोलते हैं, जैसा आप सोचते हैं, उनके पास एक ही लाइन है, बस तथास्तु। तो दोस्तों, कभी भी सच हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको बोला जाए। तो मेरा एक ये छोटी सी है दोस्तों कि आपको जो आप दिल से कहते हैं ना कि मेरा लास्ट में बस आपसे कुछ प्रश्न है,
दोस्तों मेरा आप सभी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? कभी भगवान खुदा को देखा है? क्या कभी किसी ने छुआ है? कभी किसी ने रंग रूप देखा है, आकार देखा है? मेरे हिसाब से नहीं, शायद किसी ने भी नहीं। लेकिन जो उसका हो गया, जो भी उसका हो गया, वो एक अलग किस्म की, उम्दा किस्म की पर्सनालिटी बन जाती है और लोग उसी में भगवान का रूप देखने लग जाते हैं। क्या आप शायद मेरी बात से सहमत होंगे? मेरा दूसरा प्रश्न आपसे यह है, क्या कभी आपने नेटवर्किंग देखी है? किस चिड़िया का नाम है? छोटी है, बड़ी है, काली है, पीली है, कैसा साइज है? ये है तो नहीं कि इंडस्ट्री है मेरी, किसकी है? मेरी फला चीज की इंडस्ट्री है। अच्छा, इतनी बड़ी है वो, इतना साइज है, इतने वर्ग मीटर में बनी हुई है। अच्छा, मेरा ये बंगलो है, इतने वर्ग मीटर में बना हुआ है। मेरा ये बेटा है, इतने साल का हो गया। या मेरी जमीन है, इतने बीघा, इतना एकड़, इतना हेक्टेयर है। क्या आपका कोई पैरामीटर है? कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका क्या साइज होता है, कितना बड़ा होता है, कितना छोटा होता है? मेरे हिसाब से शायद नहीं, किसी ने नहीं देखा। लेकिन दोस्तों यहां पर भी मैं फिर आगे ना आपसे वही कहूंगा कि जो नेटवर्किंग का हो गया, दिल से हो गया, दिल से जो नेटवर्किंग का हो गया, दोस्तों ये दुनिया उसकी हो गई, ये दुनिया उसकी हो गई। जरा दिल में बैठा कर तो देखो, नजरें और नजारे दोनों बदल जाएंगे। दोस्तों यही नेटवर्किंग है। अगर आप इसको दिल से करते हैं तो इस नेटवर्किंग में वो ताकत है कि दुनिया आपके प्रति लोगों का नजारा ही बदल जाएगा। बस थैंक यू, समय शायद होने वाला हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू गफूर जी, थैंक यू। आज आपने डुप्लीकेशन के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है, और जो अपनी खुद की बीती हुई चीजें हैं ना, वो सामने दिल से निकलती हैं तो वो जरूर कुछ न कुछ सिखाती हैं। और आपने बताया कि प्रवीण जी आपके गुरु, आपके अपलाइन, तो मेरे अपलाइन आप हैं। और कुछ लोग अपलाइन को दोषी ठहराते हैं, तो जो कि दोषी ठहराना चाहिए, मैं तो नहीं ठहरा सकता, क्योंकि मुझे 1 साल हुआ है और मुझे सेल्स मास्टर आपने बनाया है। इससे बड़ा और क्या दे सकते हैं अपलाइन। तो थैंक यू, आपने बहुत कुछ हमें सूक्ष्म क्षणों में समझाया, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और टू होस्ट अरुण मीना जी। थैंक यू जी सर। हेलो, थैंक यू सो मच। आज के स्पीकर जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा प्रवीण भारद्वाज जी का। बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने पावर ऑफ डुप्लीकेशन को एक्सप्लेन करा। डेफिनेटली ये बातें लगती बहुत छोटी हैं, बट दे आर वेरी इफेक्टिव। और गफूर साहब ने तो धो डाला, वाकई में ही बहुत सारे कनेक्शंस हैं। जैसे जैसे हम एक फैमिली के साथ अपना रिलेशन बनाते हैं, फैमिली हमेशा हमारे, जैसे फैमिली आप समझेंगे, फैमिली के अंदर लोग हमें मरने जीने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं ना, इसी तरह से टीम के अंदर भी हमें यही करना चाहिए। आज के दोनों जो प्रेजेंटर थे, आज दोनों लीडर ने शानदार तरीके से इस बात को रखा। मैं बहुत खुश हूं इस बात से कि इतनी शानदार तरीके से रखा है। आप जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो सर एप्रिसिएशन तो बनता है, तो 5 सेकंड के लिए जबरदस्त तरीके से आप तालियां, जो भी एप्रिसिएशन का तरीका आपके पास है, मैं चाहता हूं दोनों लीडर्स के लिए जबरदस्त एक अप्लॉज होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। Wonderful session, Kapoor ji. शानदार गफूर जी एंड प्रवीण जी, वंडरफुल सेशन, अमेजिंग, ऑसम, जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू, शानदार। थैंक यू फॉर। तो अभी लास्ट मोटो के साथ हम लोग अपनी मीटिंग को वाइंड अप करते हैं एज यूजुअल। तो मैं चाहूंगा कि होस्ट साहब, डॉक्टर जगराम साहब, आप ही इसको भूमिका को निभाएं। मैं तो बीच में थोड़ा सा ऐड हो गया था, प्लीज। जी सर, जी सर। चेरिश द स्पिरिट, There is the spirit, create the vision, follow the faith, follow the faith, follow the serve the humility. serve humility. Come on, Let's do it. Do it. great, thank you.
थैंक यू ऑल। जय हिंद सभी को। जय हिंद सर। वंडरफुल। थैंक यू सर।